Hi everyone, our topic is interest rate, which is of chapter 4, unit 1. I will be explaining question 11 and 16 and Ishita would explain question number 32. तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड प्राइस। तो बॉन्ड प्राइस क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक बॉन्ड पे कितना मतलब पे करने के लिए रेडी है। फिर होती है हमारी फेस वैल्यू, यानी कि जो अमाउंट इशूअर प्रॉमिस करते हैं कि जब बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा वो कितना पे करेंगे। फिर है हमारा कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड पे कितना एनुअल इंटरेस्ट लगता है मतलब। और कूपन्स को हम परसेंटेज में डालते हैं फेस वैल्यू की, और इश्यू डेट से मेच्योरिटी तक इन्हें पे किया जाता है। कूपन रेट जो होता है वो होता है हमारा कि बॉन्ड की फेस वैल्यू पे कितना इंटरेस्ट पे करें बॉन्ड इशूअर। फिर कूपन बॉन्ड होता है। इस टाइप के बॉन्ड में हमें कूपन्स में पेमेंट मिलती है, मतलब पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती है, और फेस वैल्यू पे भी हमें मिलती है कूपन्स मेचोरिटी पे। फिर है हमारा ज़ीरो कूपन रेट। तो किसी भी बॉन्ड का अगर ज़ीरो कूपन रेट होता है तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। So the first question is, suppose that 6-month zero rate is 4%, 12-month zero rate is 4.2%, 18-month zero rate is 4.4%, 24-month zero rate is 4.6% and 30-month zero rate is 4.8% per annum respectively with continuous compounding. So we need to estimate the cash price of a bond with face value of 100 that will mature in 30 months and pays a coupon of 4% per annum semi-annually. So we can see that the interest is continuous here. The value of the coupon payment can be determined by using the following equation. Value of coupon payment is equal to face value of the bond into coupon rate upon 2. Coupon rate is being divided by 2 because it's mentioned that the coupon is being paid semi-annually. So the value would be 100. Face value of the bond is given as 100. Coupon rate is 4%, which in decimal form would be 0.04 upon 2. So it would be 100 into 4 upon 200 is equal to 2. Hence the value of coupon payment is $2. The bond price can be determined by using the following equation. Bond price is equal to C e to the power minus y t1 plus C e to the power minus y t2 plus C e to the power minus y t3 and so on till C plus P into e to the power minus y tn, where C is the coupon payment, P is the value of the principal, T is the duration of the bond and Y are the zero rates. We have just calculated that value of coupon payment, that is C, is 2, and we will change uh, all the zero rates into decimal form. So 4% would be 0.04, 4.2% would be 0.042, 4.4% would be 0.044, and 4.6% would be 0.046, and 4.8% would be 0.048. Then we will calculate the duration, which is 6 upon 12, which would be 0.5, 12 upon 12 would be 1, 18 upon 12 would be 1.5, 24 upon 12 would be 2, and 30 upon 12 would be 2.5. Now we will put the values in the equation of the bond price. Then we will get 2 e to the power minus 0.4 into 0.5 plus 2 e to the power minus 0.042 into 1 plus 2 e to the power minus 0.044 into 1.5 plus 2 e to the power minus 0.046 into 2 plus 2 plus 100 e to the power minus 0.048 into 2.5. Then it would be reduced to 2 e to the power minus 0.02 plus 2 e to the power minus 0.042 plus 2 e to the power minus 0.066
plus 2 e to the power minus 0.092 plus 102 e to the power minus 0.12, which would e to the power minus 0.02 is 0.9802, e to the power minus 0.042 is 0.9589, e to the power minus 0.066 is 0.9361, e to the power minus 0.092 is 0.9121, and e to the power minus 0.12 is 0.8869. So after putting the values, we'll get 2 into 0.9802 plus 2 into 0.9589 plus 2 into 0.9361 plus 2 into 0.9121 plus 102 into 0.8869, which would be 1.960 plus 1.918 plus 1.872 plus 1.824 plus 90.468, which would be 98.042. Therefore, the cash price of the bond that has a value of 100 and will mature in 30 months with a 4% coupon rate is $98.04. The next question is, a 10-year 8% coupon bond currently sells for $90. A 10-year 4% coupon bond currently sells for $80. What's the 10-year zero rate? So it's given that a 10-year 8% coupon bond currently sells for $90. A 10-year 4% coupon bond currently sells for $80. We have to determine what is the 10-year zero rate by considering the investor's profit. If he takes a long position in two of the 4% coupon bonds and a short position in one of the 8% coupon bonds. So, by taking a long position in two of the 4% coupon bonds, an investor today pays $160, $80 for each bond. By taking a short position in one of the 8% coupon bonds, the investor today earns $90. So, at the beginning of the contract, the total profit of the investor is 2 into minus 80 plus 90, which is equal to minus 160 plus 90, which is equal to minus 70. So, at the beginning, the investor has a loss of $70. On maturity date of the bond, the investor earns $200 because of his long position. But he must also pay $100 for a short position. Thus, the investor's profit on the maturity date of the bond is 2 into 100 minus 100, which is equal to 200 minus 100, which is equal to 100. Thus, at maturity, the investor has a profit of $100. The 10-year zero rate can be determined by the following equation. F is equal to T e to the power NR, where F is the amount that the investor will receive after 10 years, which is 100. T is equal to amount that the investor pays today, which is 70. And N is the duration of the contract, which is 10. R is the 10-year zero rate, which we have to calculate. So, after putting the values in the equation, we will get 100 is equal to 70 e to the power 10r. So we will divide 100 by 70. So 100 by 70 is equal to e to the power 10r. So 10r would be log 1.4286. 10r is equal to 0.3567. R would be 0.03567. Therefore, when the investor takes a long position in two 4% bonds and a short position in one of the 8% bonds, the 10-year zero rate would be 3.567%. तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें बॉन्ड प्रिंसिपल, टाइम टू मैच्योरिटी, एनुअल कूपन एंड बॉन्ड प्राइस दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे टाइम टू में मैच्योरिटी में हाफ ईयर, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स का टाइम है. और हर एवरी 6 मंथ्स हमें जितने कूपन वैल्यू स्टेटेड है उसका हाफ मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है zero rates for maturity of 6 months, 12 months, 18 months and 24 months. ओके, तो उसके लिए हमें निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि होता है बॉन्ड प्राइस का. तो बॉन्ड प्राइस में हमारे पास C की वैल्यू है, F की वैल्यू है, B की वैल्यू है और
टी की वैल्यू है लेकिन आर की वैल्यू नहीं है जो कि हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर फर्स्ट पार्ट हमारा सी 0 है, एफ 100 है, पी 98 है और टाइम हमारा हाफ ईयर है यानी कि 0.5 वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले में हम सारे वैल्यूज डालेंगे तो हमारा 90 इक्वल टू 100 अपॉन ई आर 0 इंटू 0.5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ई आर को लेफ्ट साइड ले जाएं और 90 को नीचे ले जाएं और फिर उसके बाद लॉग लें तो हमारा कुछ इस तरीके से साइड दिखने वाली है जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है। अपॉन सॉल्विंग हमें आर की वैल्यू निकलेगी 4.0405%। दिस इज द जीरो कूपन रेट फॉर 6 months। तो सेम प्रोसेस हमने करा है जीरो कूपन रेट फॉर 12 months। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सारी वैल्यूज भी सेम है। द ओनली थिंग विच चेंजेस इज कि टी की वैल्यू जो है वो 6 months में हमने हाफ ली थी तो 12 months में 1 हो जाएगी यानी कि 1 ईयर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज डालने के बाद हमारा आर आ जाएगा 0.05129। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, नाउ जीरो कूपन रेट 18 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमें 6, 12, 18 और 24 मंथ्स के लिए निकालना है, तो 18 मंथ्स में हमारा ईयर जो होगा वो 1.5 ईयर्स कवर होंगे। ओके, तो हमने एक जब हमने टी हाफ लिया था टी हाफ ईयर में तो सी की वैल्यू 3.1 है, तो ये क्वेश्चन में ही हम देखेंगे 6.2 हमारी वैल्यू है और इसका हाफ अगर हम करेंगे तो 3.1 होगी। ओके, तो हर हाफ ईयर के पीरियड पे हमारा रेट जीरो कूपन रेट है फॉर हाफ अ ईयर 0.040405। फिर 1 ईयर के लिए जीरो कूपन रेट हमारा है 0.051293 जो कि हमने अभी निकाला है ऊपर। फिर हाफ 1.5 ईयर्स के लिए लेकिन मुझे रेट नहीं पता है, तो यहाँ पे मुझे कूपन पेमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी और साथ में फेस वैल्यू की पेमेंट भी मिलेगी, तो इसलिए हमने लिखा है 3.1 प्लस एफ। ओके, यहाँ पे ओके, तो हमारा नेक्स्ट है कि हाँ, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा उसमें हमने पूरा डाल दी है वैल्यूज़। एज यू कैन सी जो ये वाला था यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है c इंटू ए माइनस आर टी करना है। ओके, तो c है हमारा e और r1 और t1 की दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास है एज वी हैव डन इन द क्लासेस ऑल्सो। तो सभी को हम ऐड करके 101 वैल्यू मिल रही है। ओके, तो ये जो है हमें कैसे पता चला कि हमें 101 मिल रही है? प्रीवियसली भी इन द क्वेश्चन आप देख सकते हो कि बॉन्ड प्राइस हमें दिया हुआ है 101 है, तो हमने वही यूज़ करा है। ओके, तो अगर हम 101 में 3.1 डालेंगे तो 103.1% हो जाएगा। सॉरी, 103.1। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वल में मिलेगा बॉन्ड प्राइस 101 मिलके। हमें सब वैल्यूज़ पता है, बस R3 की वैल्यूज़ नहीं पता, तो सारी वैल्यूज़ हमने एग्जैक्टली डाल दी हैं और बस ये वैल्यू मिसिंग है, तो इन दोनों को ऐड करके हम इधर पे माइनस में ले जाएंगे तो हमारा 95.017 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे इधर जाके तो फिर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। यहाँ का जो माइनस होगा वो इधर की वैल्यू के ऊपर लगा देंगे तो इधर की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो इधर से मिलके पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारा R3 आ जाएगा 0.0544290। नाउ जीरो कूपन रेट फॉर 24 मंथ्स। 24 मंथ्स में पी की वैल्यू 2 होगी और सी हमारा 8 दिया हुआ है एट 6 मंथ्स एज यू कैन सी हेयर। हमें सी दिया हुआ है 8 के लिए
2 years के लिए हमें कूपन वैल्यू 8 दी हुई है, तो अगर हाफ के लिए हम करेंगे, हाफ एवरी 6 मंथ्स हमें मिल रही है, तो अगर 8 का हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे सब कुछ, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और टी हमारा 2 है ही। और बाकी जो ये सारा फॉर्मूला था बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे सी प्लस एफ था, तो सी की जगह यहाँ पे हमने 4 लिखा है, और एफ तो 100 है ही, बाकी सारा हमने सेम करा है। ओके, इतना टर्म तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे हमारा एफ नहीं आएगा, सी ही आएगा, प्लस 104 ई माइनस आर फोर इंटू 2। हमने दोबारा इसे सॉल्व करा, फिर इस वाले टर्म को माइनस में ले जाके इस तरीके से हमारा आ जाएगा, इस टर्म का लॉग लेके मल्टीप्लाई करके 0.5 से हमें -0.058088 मिला है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो R4 की वैल्यू हमारी आएगी 0.058088। नाउ फॉरवर्ड रेट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R2T2 माइनस R1T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो 6 मंथ्स के लिए अगर हम फॉरवर्ड रेट निकालेंगे तो हमारा T1 क्या हुआ, 0, और T2 इज नथिंग बट द 6 मंथ्स वैल्यू, यानी कि 0.5। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज डाल दी हैं। तो R2 मुझे पता है कितना निकाला है मैंने, R2 इज नथिंग बट 0.051293, और R1 0.040405 वैल्यूज डालनी है, और T1 T2 आई नो, T1 इज नथिंग बट 0 in this case and T2 is nothing but 0.5। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड रेट आएगा 4.405%। 12 मंथ्स के लिए हमारा जो आएगा वो होगा 0.5 कॉमा 1.0। तो यहाँ पे हमें रेट पता है कितना है, यहाँ पे R3, सॉरी, हाँ, R3 मुझे पता है कितना है, 0.05129, एज यू कैन सी ये R2 है हमारा। ओके, फिर हमारा R1 जो है उसकी वैल्यू भी हमने डाल दी है यहाँ पे, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.2175%। अब फिर हमारा आएगा F 18 मंथ्स के लिए अगर मुझे निकालना है, तो यानी कि मुझे निकालना है F T2 कॉमा T3। तो ये T2 है, ये T3 है, तो T2 यहाँ पे है, तो T3 और R3, सॉरी R3 और T3, तो R3 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.054429 इंटू T3 हमारा 1.5 ईयर्स है, तो वो वैल्यू डाली है माइनस में, जो ये हमारा R2 इंटू T2 है वो है 10.051293 डिवाइडेड बाय 0.5, बिकॉज 1.5 माइनस 1 इज 0.5, तो हमारा आ जाएगा 6.0700%। 24 मंथ्स के लिए भी हमने T को 2 डाला है, बाकी सेम चीज़ें डाली हैं। दिस इज F T1 T2 के फॉर्मूले में अगर हम इसको डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा T3 T4। तो हमने R4 T4 माइनस R3 T4 अपॉन T4 माइनस T3 करा है, एंड वी गॉट द आंसर एज 6.9059%। नाउ हमें निकालनी थी पार यील्ड फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स है। हमें बोला था कि पार यील्ड्स क्या होंगी जिससे मुझे सेमी एनुअल कूपन पेमेंट्स मिल रही हैं, 6 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, 18 मंथ्स की एंड 24 मंथ्स की। ओके, तो पार यील्ड हमें निकालना होता है, तो हमें पता है कि फेस वैल्यू हमें कैसे मिलती है, 100 प्लस C/2 इंटू E माइनस RT। तो यहाँ पे मुझे C जो है वो मेरी पार यील्ड है, तो C को निकालने के लिए सारी वैल्यूज मुझे डालनी होगी। ओके, 6 मंथ्स के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, तो 6 मंथ्स में हमारा C जो है मुझे गिवन है, कितना है, सॉरी, C मुझे निकालना है और हमें F गिवन है, और R मुझे पता है, अभी मैंने निकाला है 6 मंथ्स के लिए R 0.0405, और T भी मुझे पता है 6 मंथ्स के लिए 0.5 होगा, और F की वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू मुझे 100 गिवन है। इन सभी वैल्यूज़ को इधर पे रख के
इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.9800। इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में तो ये आ जाएगा हमारा 100 को माइनस करेंगे 2.0540791 एंड 2 को मल्टीप्लाई करके 4.0815902। फिर 12 मंथ्स के लिए निकालने के लिए हमारा फॉर्मूले में क्या चेंज होगा कि अब हम फेस वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज कूपन पेमेंट्स में हमारा एंड में हम फेस वैल्यू ऐड करते हैं। तो शुरू में अब यहाँ पे 100 प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ C/2 E माइनस R1T1। तो यहाँ पे हमारा इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। तो C की वैल्यू मुझे नहीं पता है और 0.98 अभी मैंने इस टर्म को कैलकुलेट करा ही था, 0.98 था। और यहाँ वाले टर्म को मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी है और इसे सॉल्व करा है तो 0.95 आया है। C/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो मुझे जो भी मिलेगा उसको मैं इधर ले जाऊँगी एंड सॉल्व करने के बाद मेरा C आ जाएगा 5.1813। नाउ पार यील्ड निकालने के लिए 18 मंथ्स के लिए हमारा T जो होगा 18 मंथ्स में 1.5 होगा और R मैंने पहले ही निकाला है, जीरो कूपन रेट मेरा 0.054429 आएगा। ओके, अगेन यहाँ पे C/2 होगा, लेकिन जो एंड वाली वैल्यू होगी उसमें फेस वैल्यू के साथ मुझे रिसीव होगी ये वैल्यू पेमेंट, तो मेरा 100 प्लस C/2 आएगा। तो पार यील्ड निकाल लेंगे सारी वैल्यूज पुट करके और सॉल्व करके हमें आ जाएगा C 5.4986। ना 24 मंथ्स के लिए क्या पार यील्ड होगी, सेम होगा, T की वैल्यू 2 होगी और R4 अभी हमने कैलकुलेट करा है वो है 0.058088। सारे फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पर सेम एग्जैक्ट चल रहा है, बस यहाँ पे एंड में फेस वैल्यू ऐड होगी। ओके, आई मीन फिर हमारा 100 आ जाएगा इधर पे। F की वैल्यू मुझे 100 दी हुई है, C की वैल्यू मुझे नहीं पता तो हमें निकालनी है। तो C सॉल्व करेंगे, अगर हम सारी वैल्यूज हमने पहले ही कैलकुलेट करी है, ये वाली ये वाली ये वाली, तो सारी डाल देंगे और हमारा आ जाएगा C की वैल्यू 5.8627। नाउ अब हमें दूसरा निकालना था प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो प्राइस निकालने के लिए हमें C/2 पूरा जो फॉर्मूला हमने पीछे करा है वही करना पड़ेगा। जो हमारी ये थी राइट साइड, दिस इज द प्राइस, दिस इज द प्राइस, बॉन्ड प्राइस हमें पहले से गिवन था। ओके, दिस इज द ये, लेकिन हमें प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकालना है। अब हमें C की वैल्यू चेंज करके दी है, तो कूपन पेमेंट मुझे दे दिया इन्होंने कितना, 7% इंटरेस्ट रेट पे। लेट अस सी द क्वेश्चन वंस अगेन। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें सेमी एनुअल कूपन मिला है जिसमें ऑफ 7% पर एनम। ओके, तो हमें अब चेंज कर दिया वैल्यू। ओके, तो हमारा सारी वैल्यूज हमें पहले से पता है, C की जगह हमें 7 डालना है और ये सारे टर्म्स जो हैं सेम है, हमने पिछली बार ही अभी कैलकुलेट करे हैं पीछे ही सारे। फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 102.1285। नाउ यील्ड ऑफ द बॉन्ड कैसे निकालेंगे, यील्ड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला भी सेम रहेगा बिल्कुल। हमें यील्ड निकालनी है तो हमें यानी कि y निकालना है यहाँ पे। तो y निकालने के लिए सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। C की वैल्यू सेम रहेगी 7/2 यानी कि 3.5, 3.5 n में हमारा 100 प्लस C/2 है तो n की 103.5। सभी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे हमारा। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस वैल्यू पे हमें ये मिलेगा, तो हम ट्रायल और एरर मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे और हमें y की वैल्यू मिलेगी 0.056%। Yield of the bond which earns me a semi-annual coupon of 7% per annum is 0.056 approximately. Okay, so this is the end of it. Thank you for your time.